So beta, first thing is this. Can you tell me what it is called? Magnet. Yes beta. Magnet. Yes, it's a magnet, but can you tell me the name of this magnet? What do we call it? Horseshoe magnet. Yes, horseshoe magnet. That is right. That's good. Sit down. Sit beta. Now Gurneet from B section. Gurneet from B section, come forward. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So can you tell me this blue part that you can see here, this blue part, what is this? Which type of pole is this? What it is showing? Pole. Yes, beta? South Pole. And red one? Ma'am, North Pole. Yes, you are right. That's good. That's good. So with this, sit down. Now, from C section, Deepika, come forward. Deepika from C section. Deepika from C section, come forward, beta. तो नाउ बेटा आई हैव अ मैग्नेट. ठीक है, मेरे पास एक मैग्नेट है एंड आई एम नॉट अवेयर ऑफ कि उसका कौन सा पोल किस साइड है. ठीक है, आई डोंट नो. सो दिस इज द मैग्नेट दैट आई हैव. ओके, इसमें ये मैग्नेट है. नाउ आई हैव वन बार मैग्नेट. हियर यू कैन सी दिस इज अ वन बार मैग्नेट. ठीक है, इट्स पोल्स आर डिफाइंड दैट यू कैन सी हियर, है ना, नॉर्थ एंड साउथ. इट इज डिफाइंड हियर. Now, can we check or can we find out the poles of this magnet through this magnet? Yes or no? Yes. Yes. So let's see. So can you tell me which pole is here on this side of this magnet? South. Yes. Why it's south? Yes, you are right. It's south. Here we can see it's south. But why it's south? See बेटा, यहाँ पर ये कौन सा पोल है? Which pole is this? North, है ना? North है. And here we can see this magnet whose poles we are not aware of. ठीक है, जब हमने ये वाला मैग्नेट जिसके पोल्स हमें पता है, उसको जब लेके आए तो उसका नॉर्थ पोल इज गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस पोल. सो किस पोल में अट्रैक्शन होती है? किस टाइप के पोल्स में अट्रैक्शन होती है? Opposite. ऑपोजिट. सो नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होगा? South. साउथ. सो लेट्स सी हम सही थे या नहीं थे. Let's, yes, see, you can see the, yes, it's south. Here you can see easily, it's south. है ना? So yes, you are right. Okay, sit down beta. So now let's do some magic. Sit down. अब कुछ मैजिक करते हैं. Here we have a magnet, here we have magnet. ठीक है, ये हमारे पास मैग्नेट है. अब हमने जो मैग्नेट है इसमें एक चीज करनी है. Just give me a minute beta, let me focus the camera first. Yes, I think it's little blurred right now. Yes. Yes, it's.
Not getting clear. Just give me a minute, beta, so that you can easily see that. It's little blurred right now. Now it's pretty clear. थोड़ा सा clear हुआ? So now we know that this is of two magnets, bar magnets we have. ठीक है? Now I am bringing one magnet close to this one. ये यहीं पर रहेगा. And here this magnet I am moving. Here, let's see. See, both are magnets. They are not getting attracted toward each other. देखो अभी तक अपने एक दूसरे के पास नहीं आ रहे, जबकि दोनों opposite poles हैं. Not now. अभी भी नहीं आ रहे. Not now. अभी भी नहीं आ रहे. ये अब अपने आप आ गया. किसने ध्यान से देखा ये चीज? ये देखो, अगर मैं पीछे कर रही हूँ फिर आ रहा है. अगर मैं इसको यहाँ पीछे कर रही हूँ, देखो, आई एम मूविंग, इट्स कमिंग. आई एम मूविंग इट अवे, इट्स कमिंग. सी, इट्स कमिंग इटसेल्फ. बट ये कब आ रहा है बेटा? व्हेन इट इज कमिंग. जब ये वाला मैग्नेट, ये वाला जो हमारा मैग्नेट है, ये इसके जो बाउंड्री है जहां पर ये अपना इफेक्ट शो करता है मैग्नेट का, तब ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. यू कैन सी व्हेन इट इज शोइंग दिस अट्रैक्शन, व्हेन इट इज टू क्लोज. देखो, जब उसकी मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी थी, फील्ड क्या होती है? जो उसका असर है, मैग्नेट का असर है दूसरे मैग्नेट पे करने का, वो इसकी जो बाउंड्री है, ठीक है, उसके अंदर जब आ रहा है, then it is showing attraction. Similarly, it will show repulsion also. Let's see, it will show repulsion or not. See, it is moving away. See, can you see? It is moving away. See कैसे भाग रहा है. Again, let's see. Can you see it is moving away? जब मैं साउथ पोल को साउथ पोल के पास लेके आ रही हूँ, इवन नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लेके जा रही हूँ, इट इज मूविंग अवे. यू कैन सी इट सेल्फ. ये देखो, आई एम नॉट टचिंग इट. इस मैग्नेट को आई एम नॉट टचिंग, इट इज मूविंग इट सेल्फ. सी, इट इज मूविंग. ध्यान से देखा? समझ आया रिपल्शन कैसे हो रही है? हैंड राइज करो इफ इट्स क्लियर. सबको समझ आया? इवन यू कैन डू योर सेल्फ ऑल्सो. ठीक है? सो इट्स अ मैजिक. यू कैन, क्योंकि हम क्या कहते हैं, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है. बट हियर वी हैव सीन इट इज मूविंग अवे. व्हेन same poles or like poles are coming towards each other, they will repel each other. Here you can see. But where it is showing repulsion and attraction, when it is here in this boundary, that is their magnetic field, जहां पर ये असर दिखाएगा. ओके, तो ये यही दिखा रहा है, यहां से नहीं दिखा रहा. इट इज शोइंग व्हेन इट इज अंडर इट्स मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, जब उसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, देन इट इज शोइंग द इफेक्ट. सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. अब हम अगर कहें हमारे पास यहां पर लेट शो डू एन एक्टिविटी. ठीक है, हियर आई हैव सम मैग्नेटिक फाइलिंग्स. ठीक है, ये मैग्नेटिक फाइलिंग्स है दैट आई हैव. ठीक है, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये मेरे पास बार मैग्नेट है जो कि मैंने उसे सस्पेंड किया है. यू कैन सी हियर, इट इज हियर. नाउ आई एम ब्रिंगिंग दिस क्लोज टू द बार, दिस आयरन फिलिंग्स. अब आयरन फिलिंग्स के ऊपर से ऐसे मैं मूव करूंगी. सी, आई एम मूविंग इट हियर लाइक दिस. देखो, चारों तरफ घुमा रही हूँ. आई एम नॉट मूविंग इट इन वन डायरेक्शन. अब अगर आपने देखना है कि पोल्स में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, यू कैन सी कहां पर सबसे ज्यादा जो आयरन फाइलिंग्स है यहाँ पर अट्रैक्ट हुई है. तो फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट, हमें क्या पता लगता है बेटा? सबसे ज्यादा ताकत कहां पर है, स्ट्रेंथ कहां है मैग्नेटिक फील्ड की?
On the pole. पोल्स, क्योंकि पोल्स में आप खुद देख सकते हो, देखो पूरा मैग्नेट है, इट इज होल मैग्नेट, पूरा मैग्नेट है, लेकिन चिपकाने की जो सबसे ज्यादा इसके पास पार है, दैट इज हियर इन दिस, वी कैन से एट दीज टू पोल्स, ओके, दैट वी कैन सी इटसेल्फ. So this is also confirms that poles have more strength than other parts of the magnet. ठीक है, so this is what we get. अब हम एक और चीज करेंगे. और तुम आंसर कर देना, क्रॉस चेक करा के उनका क्लासेस का रिकॉर्डमेंट लेंगे, चेक बोला कि बच्चा चेक कर देना होगा क्लियर. So this is all about poles. अब हम एक और चीज देखेंगे, ठीक है. Now again we are coming back with another activity. अब हमने यहाँ पर ये अपना ग्लोब रख दिया. This is our globe. You can see here easily. है ना, दिख रहा है ना आपको ग्लोब? You can see the globe. This is our globe. ठीक है. So let me focus. Yes. Here you can see जो आपको थोड़ा सा ओपेक वगैरह दिख रहा है. These are continents. ठीक है. So that is our globe. तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ so that you can understand the activity. So we have studied about globe, or we say we have studied about many things about the magnet. ठीक है. हमने एक पढ़ा था कि अगर हम ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, इसको अगर हम ऐसे सस्पेंड करते हैं, इट ऑलवेज अलाइन इन विच डायरेक्शन? डी सेक्शन से अवनीत, टेल मी अवनीत, फ्रॉम डी सेक्शन. जब हम ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को हम अलाइन करते हैं, ऐसे जो है खड़ा करते हैं, सो ये कौन से डायरेक्शन में हमेशा अलाइन होता है? इन विच डायरेक्शन इट ऑलवेज अलाइन? Here it is already aligned. In which direction? South north or north south? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही. I am not able to hear you. North south? Yes. North south direction में it will align. Why? अब जो अर्थ है, जो ये हमारा अर्थ है, इसको हम जाइंट मैग्नेट कह सकते हैं. इसमें देखो ऐसे मैग्नेट होता है, ठीक है, बिग मैग्नेट. अगर ये जो मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो रेड है. रेड मतलब नॉर्थ यहाँ पर है, साउथ यहाँ पर है. जो अगर हम कोई भी मैग्नेट, जो हमारी मैग्नेट है, उसको जब अलाइन करेंगे तो वो कैसे अलाइन होगी? वो हमेशा ऑपोजिट अलाइन होगी. इट विल अलाइन इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, तो इसी डायरेक्शन प्रॉपर्टी को, दिस इज द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, that this directional property we use to make this compass. So जो compass है, that is based on this directional property of the magnet. ठीक है, क्योंकि अर्थ का मैग्नेट तो पूरे उसमें सेम ही रहेगा. It is not going to change its direction, its polarity. It is south and north only. तो जब भी आप कंपास लोगे या कोई मैग्नेट लोगे, it will align in this way only. ठीक है, ओके. अब हम एक और एक्टिविटी करेंगे. वी आर गोइंग टू डू वन मोर एक्टिविटी. ठीक है, सो इन दिस एक्टिविटी व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इट्स अ मैग्नेट. आई हैव दिस मैग्नेट, आई हैव दिस पिन. कैन यू सी द पिन हियर? यस. अभी ये पिन जो है, दिस पिन इज नॉट एबल टू अट्रैक्ट अनदर पिन. मेरे पास एक और पिन है, ठीक है. सो वन पिन इज हियर, अनदर पिन इज हियर, बट दिस पिन विल नॉट अट्रैक्ट दिस पिन. ये देखो, इसके पास भी ले आऊं तब भी अट्रैक्ट नहीं कर रही. अगर मैं इसको उठाऊंगी तो इसके साथ ये नहीं उठ रही. इट्स नॉट कमिंग अप. बट ये जो मेरे पास मैग्नेट है, इसके साथ मैंने ये पिन लगा दी. कैन यू सी नाउ इट इज अट्रैक्टेड टू विद दिस मैग्नेट? कैन यू सी दैट? Yes. अब ये जो मैग्नेट जो पहले इसके साथ अट्रैक्ट नहीं हो रही थी इस पिन के साथ, नाउ लेट्स सी. कैन यू सी इट इज गेटिंग अट्रैक्टेड? Yes. व्हाई सो? See, it is coming up. Can you see that? Now, why this happen? अब जो ये पिन है जो इसके साथ बेटा लगी है, it has temporary magnetism. उसके पास temporary magnetic properties आ गई है. Now it is behave like a magnet. ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है. और जब इसके पास कोई जो है मेटल ऑब्जेक्ट आएगा,
it can attract it. So here you can see the attraction is happening. Yes. So this is temporary magnetism. परमानेंट नहीं है. जब इसको अगर वापस हम हटा देंगे, ये देखो इस पिन को मैं वापस हटा रही हूँ, आई एम रिमूविंग इट, सो इट विल नॉट अट्रैक्ट दिस पिन. देखो फिर से नहीं इसको अट्रैक्ट कर रही, इट्स नॉट मूविंग अप. लेकिन अगेन इसके साथ करूंगी, इट्स विल मूव अप. ये देखो फिर से इसके साथ आ रही है. कैन यू सी दिस? यस. सो दिस इज टेम्परेरी मैग्नेटिज्म. So I hope it is clear to everyone. Yes, that's really good, wonderful students. तो आपको ये सारा समझ आना चाहिए, ठीक है? So this is what. So now let's move with one more thing. Fun with magnet का we have done, ठीक है? So now let's see here. I have this bulb. Can you see this bulb? Yes. Yes. So in this bulb, हरनूर आ जाओ E section से. हरनूर from E section. Good morning, beta. So in this bulb we have this glass case. Yes. So what is the role of this glass case? क्यों है glass case? It is present. क्यों है बेटा covering? Why this covering is there? To cover the filament. To protect the filament. And also one more thing is here. If you notice, which gas is filled in the bulb? कौन सी गैस होती है बल्ब में? Yes बेटा. Which gas? Argon. आर्गन. सो आर्गन अगर गैस जो है इसके अंदर है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे बंद रखने के लिए वी नीड अ कवरिंग, है ना? अदरवाइज वो तो उड़ जाएगी. सो दैट्स व्हाई वी हैव दिस ग्लास केस. ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव. ठीक है, सिट डाउन. नाउ एफ सेक्शन से खुशप्रीत कम फॉरवर्ड. एफ सेक्शन खुशप्रीत. He is good for extra class. Okay, Karanveer is there. Yes, Karanveer is there. Yes. So Karanveer बेटा, can you tell me कि ये जो आपको बीच में दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक वायर दिख रही है. What do we call it? Filament. फिलामेंट. और किसका बना होता है? Tungsten. टंगस्टन का. क्यों टंगस्टन का क्यों बना होता है, कॉपर का क्यों नहीं है? अगर मैं इसकी जगह कॉपर वायर यूज कर लूं टू मेक अ फिलामेंट, व्हाट विल हैपन? क्या होगा? Melting. यस, दैट विल मेल्ट, है ना? वो मेल्ट हो जाएगा. ठीक है, और ये मेल्ट नहीं होता, दैट्स व्हाई वी यूज इट. एंड ये हीट होके फिर हमें लाइट देता है. ठीक है, सो दैट्स राइट. So gas we already know, argon is here in this bulb because argon is inert gas, means it doesn't react with the filament. ठीक है, अगर ऑक्सीजन होगा तो वो रिएक्ट कर जाएगा. ठीक है, so this is bulb. अब एक और चीज करते हैं. Let's do one more experiment. Can you see this? What is this? Circuit. It's an electric circuit. Yes, you all are right. ठीक है. Yes, this is an electric circuit that we have right now. So here we have bulb, and this bulb basically tell us whether a circuit is open and closed. Yes, बताता है. Yes. Now tell me whether this circuit is open or closed right now. Closed. Sure. Raise your hand if you are saying it's closed. Okay, everyone is saying that's really good. अब बताओ, is it closed or open? Open.
Open. That's wonderful. Now tell me, this is cell or battery? बैटरी है. अच्छा, ए सेक्शन से मेरीन आ जाओ. ए सेक्शन मेरीन, कम फॉरवर्ड बेटा. Yes. This is cell or battery? Battery. Why it is battery? Not a cell. When two or more cells are Yes, you are right. When two or more cells combine, so they are called battery. Okay, that's good. Sit down, beta. Sit down. Now, this is switch. Yes. Yes. So B section से आ जाओ नवदीप. B section नवदीप, come forward. for extra class. Okay, Seerat is there. Ma'am, yes. Seerat, come forward, beta. So here I'm using this. ठीक है. So what is the role of this switch? What I'm doing right now? What is the role of the switch? You can see I am doing on and off. Bulb is getting on and off by pressing the switch. So what switch is doing? What is the role of the switch? You can see it's on. If I press the switch, it becomes off. So what is the role of this switch? On off. ऑन ऑफ तो है बेटा, लेकिन ऑन ऑफ तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं ना. यस, हमारा जो बल्ब ऑन हो गया, ऑफ हो गया. बट व्हाट स्विच इज डूइंग? लाइक वी आर स्टडीइंग इलेक्ट्रिक सर्किट ना. साइंटिफिकली व्हाट वी कॉल इट, व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ. इफ बल्ब इज ग्लोइंग, सो सर्किट इज ओपन और क्लोज. यस बेटा, बोलो, आप बोलो, साथ वाले नहीं. यस बेटा, राइट नाउ सर्किट इज ओपन और क्लोज्ड. बेटा एक मेहरीन आपकी क्लास में एक है ना. लेट हर स्पीक. Closed. और राइट नाउ, Open. so what switch is doing? What is the role of switch here then? Switch क्या कर रहा है? By pressing the switch button, we are opening or closing the circuit. अगर देखो अभी सर्किट ओपन हो गया जब मैंने इसको स्विच ऑफ किया. When I switch it on, it turns on. Why? Because circuit is closed now. So switch का रोल क्या आता है? Making or breaking the circuit, or we can say opening or closing the circuit. So that is done by this switch. कि हमने सर्किट को ओपन रखना है या क्लोज रखना है. That is done by this switch. Got my point? Yes. ठीक है. हमने ये नहीं कहना ऑन ऑफ हो गया. दैट वी नो, वो तो आपको ही बता देगा. आप तो अपने घर पे जाओ, आपका छोटा सिबलिंग होगा या कोई छोटा बच्चा होगा, वो भी बता देगा हमने पंखा ऑन कर दिया, पंखा ऑफ कर दिया स्विच करके. हमने वो थोड़ी ना बताना. बट वी हैव टू टेल सर्किट इज ओपन और क्लोज बाय डूइंग प्रेसिंग स्विच. ठीक है. Yes. Yes, sit down बेटा, sit down. So that is about electric switch. ठीक है. अगर मैं यहाँ पर बेटा ये जो दो सेल्स हैं इसकी जगह 4 सेल्स यूज कर लूं, क्या होगा यहाँ पर? सी सेक्शन से हरसीरत आ जाओ. हरसीरत, what will happen if instead of these 2 cells I use 4 cells or many cells? ठीक है. क्या होगा फिर? I'm not able to hear you. गुड मॉर्निंग बेटा. अगर मैं यहाँ पर जो 2 सेल है उनकी जगह 3, 4, 5 सेल यूज कर लूं, व्हाट वुड हैपन? हाँ, तो बेटा क्या होगा? आप ये देखो, यहाँ पर 2 सेल है, बल्ब इज ग्लोइंग. ठीक है, बल्ब ग्लो कर रहा है.
अगर मैंने यहाँ पर 4 सेल यूज कर लिए या मोर देन दैट इट विल ग्लो, बट इट विल ग्लो मोर, ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। और जो हमारा सर्किट है, जो करंट है, वो ज्यादा देर तक फ्लो करेगा, और वी कैन से दिस सर्किट विल वर्क फॉर लॉन्गर पीरियड एज कंपेयर टू 2 cells or a single battery. Got my point? Yes, sit down beta. So this is about electric circuit. So ठीक है, हमने भी इलेक्ट्रिक सर्किट को थोड़ा सा जाना, ठीक है। So now let's move. Now this is a object, ठीक है, this is an object and I have this light source with me, ठीक है। This is the light source right now I have. So let me point from here, I think. Just give me a minute. Let me turn off the lights so that you can see it. So for shadow formation, what do we need? Screen, source of light, object. Right now we have this object. We have screen also. Now we have light also. This light source. So now अब हम इसको थोड़ा सा ध्यान से करते हैं ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम, ठीक है। मॉर्निंग के टाइम क्या होता है बेटा, जो सन है वो ऐसे इंक्लाइन होता है। कैन यू सी शेडो कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है? बड़ी। बड़ी हो रही है। अब देखो सन जो है यहां से मूव करते 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 जब यहां पर आता है एकदम ऊपर, तो शेडो कैसी हो रही है? इट इज गेटिंग शॉर्ट। सबको खुद दिख रहा है? इट इज गेटिंग शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट। जब पूरे 12 बजे के करीब टाइम हो जाता है, इट इज रियली वेरी शॉर्ट। यू कैन सी इट जस्ट कहां पर है, एकदम नीचे, है ना? यू कैन सी। फिर सन थोड़ा सा आगे 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 जाता है शाम के टाइम, और फिर वो यहाँ को आता है। सो नाउ इट्स अगेन बिग। यू कैन सी इट्स अगेन बिग। सो यहाँ पर सन की क्या हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है विद द टाइम, सो शेडो का साइज भी चेंज होता है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर तो हमारी शेडो बन गई, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यूज करती, ओके, इफ आई यूज दिस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ये भी अभी पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है। If instead of this, if I use transparent, can shadow will form? You can see there is no shadow of this transparent object. Light सीधा जा रही है। Yes? ये मेरे पास ग्लास है, तो उससे पूरी डायरेक्टली लाइट पास हो रही है। कैन सी शेडो नहीं बन पा रही। लेकिन यहाँ पर जब मैंने ऑपेक ऑब्जेक्ट यूज किया, मैंने यूज दिस ऑपेक ऑब्जेक्ट, सो शेडो इज फॉर्मिंग। इसकी शेडो बन रही है। ओके, शेडो इज फॉर्म्ड हियर, यू कैन सी इटसेल्फ, ठीक है। So for shadow formation, we need this light source. You can see here. We need this screen and we need this object. So these three are the requirements for the formation of shadow. Now, can I change the size of the shadow? Yes. Really? Okay, let's see here. So what I'm going to do, I'll show you. ठीक है, यही object रहेगा हमारा. Right now we are using the same object. But here I'll show you. So here shadow is forming on this, ठीक है। ये देखो shadow इस पे बन रही है। अब यहाँ पर ये देखो, मैंने यहाँ लाइट सोर्स रख दिया, ये हमारी स्क्रीन है। More visible to you. Light source is here. Is it visible to you?
Yes. So here, let me use this car. I think it's visible. नहीं, छोटा है थोड़ा. So let's take this object only, then this object. अब इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं लाइट के पास लेके जा रही हूँ, कैन यू सी शेडो कैसी बन रही है? बहुत बड़ी. देखो अभी ये दूर है, सो यू कैन सी द शेडो हियर. कैन यू सी द शेडो हियर ऑन द स्क्रीन? इट्स स्मॉल. अगर मैं और स्क्रीन के पास लेके जा रही हूँ, इट इज ऑलमोस्ट ऑफ सेम साइज. और एकदम ही पास ले जाओ तो ये देखो एकदम बराबरी हो गया. यस, इट इज गेटिंग डिक्रीज. अब इसको स्क्रीन से दूर और लाइट के पास लेके जाते हैं, सो यू कैन सी इट इज गेटिंग इंक्रीज. और अगर मैं एकदम ही पास ले जाऊं तो आपको शेडो लगभग दिखेगी ही नहीं, क्योंकि हमारी भी स्क्रीन छोटी है. ठीक है, लेकिन इट इज रियली वेरी बिग. नाउ यू कैन सी इट्स बिग. ये देखो साइड से लाइट दिख रही है हमें यहाँ से आते हुए, और बाकी पूरा जो हमारा स्क्रीन है वो कवर्ड हो गया विद द शेडो. यस. Yes. अब यही चीज जो हमने देखो साइज छोटा बड़ा कैसे किया, ऑब्जेक्ट को अगर हम स्क्रीन के पास ले जाते हैं इट्स साइज डिक्रीज, अगर लाइट के पास ले जाते हैं तो इट्स इंक्रीज. ठीक है. अब इसी चीज को आप बता सकते हो हमारे नेचर में कहाँ यूज किया जाता है? वेयर कैन वी यूज इट इन द नेचर? वेयर इट इज यूज्ड इन द नेचर? एनी ऑफ यू टेल मी. Eclipse. Yes, in the eclipse. So suppose this is our earth. ठीक है, ये हमारा अर्थ है. ठीक है, ये हमारा जो है मून है. दिस इज मून. और ये जो लाइट सोर्स है दिस इज सन. ठीक है. अब यहाँ पर हमारे अर्थ पे पूरी लाइट पड़नी चाहिए. ठीक है, ये देखो पूरी लाइट पड़नी चाहिए. यू कैन सी इट इज लाइक दिस. ब्राइट होना चाहिए सन, है ना? सन पूरा पड़ना चाहिए. लेकिन सोलर इक्लिप्स में क्या होता है? इफ वी टॉक अबाउट सोलर इक्लिप्स, तो ये मून जो है, ये देखो मून. कैन यू सी दैट? Yes. ये देखो मून पे लाइट पड़ रही है यहाँ पर बीच में, देखो इतनी ब्राइट. तो दिस मून इज ब्लॉकिंग लाइट ऑफ सन फॉलिंग ऑन अर्थ. और जहां पर ये एक्सपीरियंस हो रहा है, वेयर वी कैन नॉट सी द सन ड्यूरिंग डे टाइम, वहां क्या कहेंगे? क्या हो रहा है? सोलर इक्लिप्स हो रहा है. और मून इस टाइम कौन से फेज में होता है? New moon. मून. हमें यहाँ अर्थ पे मून नहीं दिख रहा, लेकिन मून इज देयर एंड इट इज ब्लॉकिंग द लाइट ऑफ द सन. सो हियर सन इज हियर. देखो सन है, ये देखो ऐसे लाइट पूरी पड़ रही है. कैन यू सी? अर्थ इज ब्राइट. ठीक है, पूरा चमक रहा है. अभी यहाँ पर आप देख सकते हो सन इज इल्यूमिनेटेड. सॉरी, सन नहीं, अर्थ. ठीक है, जब सन की लाइट पड़ रही है. लेकिन जब मून आ रहा है यू कैन सी इट्स गेटिंग डार्क, क्योंकि मून जो है सन की कुछ लाइट को ब्लॉक कर रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दिस वी एक्सपीरियंस सोलर इक्लिप्स. अब इसी को उल्टा कर देते हैं. अगर मून पीछे चला जाए, जबकि मून पे क्या होना चाहिए? सन की लाइट अच्छे से पड़नी चाहिए. यस. जो मून है, ये जो मून है, इस पे सन की लाइट पड़ती है. यू कैन सी इट इज ब्राइटेड. दिख रहा है पूरा ब्राइट? यस, इट इज ब्राइट. पूरा ब्राइट है फुल मून पे. ठीक है, फुल मून पे जब हमें पूरा चांद दिखता है वो ऐसा दिखता है. ये रहा अर्थ. अर्थ इज हियर. अर्थ पे जो है हमें मून पूरा ब्राइट दिखता है. लेकिन अगर इसके बीच में, सन और मून के बीच में, अब यहाँ पर देखो अर्थ आ जाता है. ठीक है, मून दिख रहा है हमें अब? यस. मून पे लाइट है अब? No. नो. जबकि अर्थ पे लाइट है, सन की लाइट हल्की सी पड़ रही है. तो अर्थ इज ब्लॉकिंग लाइट ऑफ सन फॉलिंग ऑन द मून. अब ये कौन सा एक्लिप्स है? Lunar eclipse. ल्यूनर एक्लिप्स. क्यों और ये कैसे हुआ? अर्थ इज इन बिटवीन. नाउ अर्थ इज इन बिटवीन, वी कैन से अर्थ इज इन बिटवीन ऑफ, अगर हम इस वे में देख लें, यहां से देख लेते हैं. नाउ अर्थ इज इन बिटवीन मून एंड सन. ठीक है, ये देखो अब ये मून अगर ऐसे देखो, फुल मून है. दिस इज फुल मून. कैन यू सी दिस फुल मून? Yes. जब ये मून ऊपर है, अब देखो मून थोड़ा नीचे और अर्थ अगर आ जाए बीच में, दिस इज एक्लिप्स. कैन यू सी? एकदम क्लियरली बेटा. मून
जो अर्थ है उस पे लाइट पड़ रही है, लेकिन मून जो है वो डार्क है। अब देखो वापस करते हैं, दिस इज फुल मून, दिस इज एक्लिप्स। दिख रहा है ऐसे? Yes. क्लियर है ऐसे? देखो ये देखो फुल मून पे कितना चमक रहा है चांद, ठीक है, क्योंकि सन की डायरेक्ट रेस पड़ रही है। लेकिन जब अर्थ ऊपर थोड़ा सा हो रहा है, मून थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, सो इट इज लाइक दिस। क्लियर? किसी को कोई डाउट? दैट्स रियली गुड बेटा, तो कुछ सब सारे ही समझ आ गया। वंडरफुल टू नो दैट। ठीक है, तो आज हमने ये सारी एक्टिविटीज की है, ठीक है। तो हमने इससे समझा है कई चीजें, वी अंडरस्टूड मेनी थिंग्स अबाउट आर कॉन्सेप्ट्स लाइक लाइट, शैडो, रिफ्लेक्शन। वी अंडरस्टूड अबाउट इवन द फन विद मैग्नेट्स, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स वी शुड बी अवेयर ऑफ, ठीक है। हमने प्रैक्टिकली भी देखना चाहिए हमें कि हम पढ़ क्या रहे हैं, क्या वो चीज असली में होती भी है या नहीं होती, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा करते हैं हम लास्ट में मोशन का। यस बेटा, Ma'am, our first period has started. your first period it started, okay, 9:52 हो गया, okay, so that's all, we will see in next class, ठीक है स्टूडेंट, बाय।